has been started. Fine. So recording has been started. Fine. So we are looking for this PCA algorithms, and we had gone for choosing our data and then standardizing our data, and then we had find our covariance matrix over there, and we had discussed why were going for all those things. Now we are going for after identifying this covariance matrix, then we'll going for this eigenvectors and the eigenvalues, because then eigenvalues represents the most important information, and we had looked in the earlier classes that these eigenvectors are the most important information is important information. What is the most important information? It contains near about almost all the important information, and we are going for some dominant eigenvectors. So when we are calculating these eigenvectors and the eigenvalues right from your covariance matrix, because we had looked why we are going for this covariance matrix. So this covariance matrix represents the association in between, or finding whether some columns are associated or not. So after finding the eigenvectors and the eigenvalues of this covariance matrix, we are like to find out what are the principal components of our data. That is, what is the most important thing in your data. So we are having some diagonal elements, and we are like to break all those things into your eigenvectors, then your particular covariance matrix, and then you are having some again eigenvector, and this covariance matrix is again diagonalized. So we are looking for this eigenvalues. So we like to diagonalize this particular covariance matrix. So and these are supposed to be the principal components, because these particular diagonals are particular eigenvalues are supposed to be the most important information. So when we are saying that these are supposed to be the most important information for our system, so we'll assume that this most important information is supposed to be the principal components of our data, and these principal components are supposed to be new variables, or we can say that these are supposed to be the new columns of our new transformed matrix, and these new columns are the combination of your previous columns. तो हमारे पास जो previous columns है उनका linear combination एक लिया तो एक component आया, फिर उसका linear combination दूसरा आया, and so on. So we are sorting all those eigenvectors in the decreasing order, so that we are getting the first important, second important, third important, and so decreasing all those values. हम next slide में देखेंगे what are the principal components और उनकी values कैसे आती है. So these combinations are done in such a way that your new variables are like your principal components are supposed to be the uncorrelated, because we are going for the basis of our data, and this basis are assumed to be the independent. So these principal components are the uncorrelated, because these are having the 90-degree of an angle in between them. So these are supposed to be the new dimension, and these dimensions are supposed to be 90-degree. And when we are going from this 90-degree, it means that we are having some few items are available that is to be computed. Otherwise, if we are having the 90-degree, it means that the other components are the multiplication with particular component with the other components are having 90-degree, so it gives angle of 90-degree, and it means that we are going for we had zero value for that particular item. So we are focusing on the each particular item. Fine. जैसे हमने निकाला था this alpha ej is just equals to your xi and your pj. तो हमारे पास pj into pi जो था हमारे पास वो value थी, this is equals to 0, and when we are having pi square, then we are getting the one value. So it means that we are getting only the most important information. Instead of getting full vector, we are just focusing on few scalar values over there. So our idea is that like we are having 10-dimensional data available, like we are having 10 features in your original data matrix. So what we are trying to do is that we like to create 10 new principal components, or we are creating 10 new axes over there, and after finding this 10 principal components, we like to find out which this 10 principal component is having most important information, or it means that which of these are having larger variance in comparison to another which are having a smaller number of variance. So if you are having smaller number of variance, it means that you are having a smaller number of dispersion available. It means that you are having
very low information available for that particular axis, जैसा हमने देखा भी था. Fine. So this is my PC algorithm. This is my H plot. आपको सिलेबस में दिया भी. This is my H plot. This is a histogram plot. So the percentage of the explained variance हमने बोला था कि हमने सारे आइगन वेक्टर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करा है. तो पहला आइगन वेक्टर हमारे पास डोमिनेंट आइगन वेक्टर था. अब वो डोमिनेंट आइगन वेक्टर था तो आपके पास बहुत सारी वैल्यूज इंक्लूड कर रहा था. जैसे हमने इंक्लूड करा भी था लाइक जैसे हम 2 डायमेंशनल की बात भी करते हैं. सो दिस इज माय 2 डायमेंशनल डेटा. हमने उसकी नई एक्सिस बनाई थी लाइक मैं कलर ले लेता हूँ. लाइक दिस इज माय नई एक्सिस बनाई थी हम लोगों ने. 2 पर्टिकुलर एक्सिस ऐसे बनाई थी और इस पर्टिकुलर एक्सिस में हमारे पास जो कुछ डेटा था, अभी हमारे पास डेटा कुछ ऐसा आ रहा था कि लाइक हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आ रहा था. तो इस डेटा में आप देखेंगे कि हम जब इस वाले एक्सिस पे बात करते हैं और इस वाले एक्सिस पे बात करते हैं तो हमारे पास x का वेरिएंस यहाँ आ रहा है, y का वेरिएंस भी हमारा नियर अबाउट इतना जा रहा है ना. तो हम 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बना रहे हैं. जब हम सेकंड केस की बात करते हैं देन वी आर गोइंग लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सिस. कलर तो नहीं चल रहा, हम दूसरा कलर ले लेते हैं लाइक पर्पल. सो हम इन पर्टिकुलर एक्सिस की बात करते हैं. तो इन एक्सिस में आप देखें कि हमारे पास इसका वेरिएंस यहाँ तक जा रहा है और इस एक्सिस में हमारे पास वेरिएंस आ रहा है. अभी हम इनिशियली जो है डायमेंशन रिड्यूस नहीं कर रहे हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि नई एक्सिस बना रहे हैं. उस नई एक्सिस में हम हमारा पूरा वेरिएंस इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब हमारे पास न्यू एक्सिस आई. उस न्यू एक्सिस में आप ये देखिए कि इसने इतना पूरा वेरिएंस तो कवर कर रखा है, पर इस पर्टिकुलर एक्सिस में वेरिएंस बहुत कम इंक्लूड कर रखा है. इट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, इस डायमेंशन को हम रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि इसमें वेरिएंस कम है. जब वेरिएंस कम है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन कंटेंट उतना है ही नहीं. तो दिस इज इररिलेवेंट फॉर अस. सो हमारे पास पर्टिकुलर एक डायमेंशन है क्या दिस इज. सो हमारे पास जब यहाँ पर लिया था दिस बिलोंग्स टू योर लैम्बडा 1 एंड दिस बिलोंग्स टू योर लैम्बडा 2. एंड अगर हमारे पास 3 डायमेंशन होता तो हमारे पास फिर 3 डायमेंशनल में लैम्बडा 3 यहाँ आता जिसमें हमारे पास कोई वेरिएंस नहीं था. फाइन. सो दिस बिलोंग्स टू योर लैम्बडा 1, दिस बिलोंग्स टू योर लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 3 एंड सो ऑन. तो अब आप यहाँ चेक कर लें कि देखिए पहला कंपोनेंट है आपका नियर अबाउट कितना 40% वेरिएंस है ना. यहाँ से 40% ऑफ वेरिएंस आपका इंक्लूड कर लिया. दिस इज सपोज टू बी 10 डायमेंशनल डेटा. तो 10 डायमेंशनल डेटा में 40% तो इसने इंक्लूड कर लिया. नियर अबाउट 18% इंक्लूड कर लिया. तो 14 + 18 तो यह कितना हो रहा है लाइक 40 + 18. सो दिस इज 58. देन थर्ड कंपोनेंट ने आपका नियर अबाउट 15 कर लिया. तो 58 + 15. सो दिस इज इक्वल्स टू 63 एंड देन 73. आपने 73% यहाँ इंक्लूड कर लिया. एंड दिस इज फोर्थ वन. इसमें हम मान लें कि दिस इज 9. तो 73 एंड दिस इज लाइक 82%. तो इंस्टेड हमारे पूरे डेटा को हम इंक्लूड कर रहे हैं, हम फोर्थ कंपोनेंट से हमारा 82% डेटा इंक्लूड कर सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये सिर्फ 4 एक्सिस ले रहे हैं और इस 4 एक्सिस पर हम बाकी सारी एक्सिस को छोड़ सकते हैं. इज इट फाइन? Yes, sir. So what we are trying to do is that we will like to reduce our dimensionality without losing much information. So we are not losing. हमने कितना, this is for 82%. हमने कितना छोड़ा है, हमने 80% छोड़ा. पर 80% से हमने कितना सो हमारे पास नियर अबाउट 60% डेटा को हमने छोड़ के सिर्फ 40% पर अगर हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी आर डिस्कार्डिंग द कंपोनेंट्स विद द लो इन्फॉर्मेशन. और वो लो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन एंड कंसिडर द रिमेनिंग कंपोनेंट्स आर न्यू वेरिएबल. जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि IIT बहुत अच्छा कॉलेज होता है, तो दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. आपको पता है कि IITs आर वेरी गुड. तो हम उस इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड ही क्यों करें? आपको पता है कि IITs आर वेरी गुड कॉलेजेस. फाइन. सो इज दिस फाइन? सो मूविंग द नेक्स्ट स्लाइड. So first thing is that we have to calculate the eigenvectors and the eigenvalues. So we are calculating the eigenvectors and the eigenvalues right from this x transpose x. हमने जब मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया था वहाँ पे मैंने उसको बोल दिया था x transpose. So this is my not x transpose, this is my, this z is my
स्टैंडर्डाइज्ड डेटा, सो दिस इज माय स्टैंडर्डाइज्ड डेटा। हमने उस x को मैंने स्टैंडर्डाइज्ड डेटा मान लिया था। तो हम जब कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाल रहे थे, दिस इज आइदर यू कैन गो फॉर दिस एंड z ट्रांसपोज z और वी कैन से दैट x ट्रांसपोज x, फाइन। सो मैंने यहाँ सपोज करा था कि दिस इज एन स्टैंडर्डाइज्ड, सो अगर आपको नहीं पता हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, दिस इज माय स्टैंडर्डाइज्ड डेटा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी लाइक टू कैलकुलेट द आइगन वेक्टर्स ऑफ योर करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। सो हम निकाल भी यही रहे थे, जैसे हम P ट्रांसपोज X ट्रांसपोज X देन P, हमने इसको फिर आखिरी में डायगोनल एलिमेंट मान लिया था। सो वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द आइगन वेक्टर्स एंड द आइगन वैल्यू। सो दिस आर सपोज टू बी द आइगन वेक्टर एंड दिस आर सपोज टू बी द आइगन वेक्टर एंड दिस आर अगेन your orthogonal vectors, fine. So these are the eigen, so we are going for the eigenvector decomposition. So we'll decompose this value z transpose z into your P some diagonal elements, then P inverse. So when we are in like we are having some orthogonal matrix, orthonormal vectors. So this, in case of orthonormal vectors, your P inverse is just like your P transpose. So we are getting for this P transpose, instead of calculating again the inverse, we are just having, if we are going for this orthonormal vector, so then we can go for this transpose entities over there. So this P is an matrix that contains your eigenvectors. So these are P is again your eigenvectors, and D is your diagonal matrix. So this is my diagonal matrix, and instead of containing all those items, जैसे हमने यहाँ पे बोला था, instead of containing all those items, we are containing only the eigenvalues over here. So this diagonal elements, so these diagonal elements, or this particular diagonal, this particular D, or let's say this sigma is just your eigenvalues on the diagonal values, and other values are supposed to be zero, क्योंकि हम जब हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भी, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं अगर वापस इसमें पीछे आता हूँ, मेरे पास ब्लैंक स्लाइड का है, हाँ यहाँ सॉरी ब्लैंक स्लाइड पर देखता हूँ, तो मेरे पास अगर यहाँ कुछ वैल्यूज आ भी रही हैं, लेट से यहाँ पर P1 आ रहा है, ये P1 आ रहा है, और इसमें मैं P2 का भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो P1 और P2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों वैल्यू मेरे को जीरो ही देगी। मैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को इंक्लूड करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर P1 इंटू P1 आएगा, यहाँ पे P2 इंटू P2 आएगा, यहाँ P3 इंटू P3 आएगा, तो अदर एलिमेंट्स को मेरे को इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स लिए हैं, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स लिए हैं, तो आप जब आपस में उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज जीरो ही देंगे। तो इंस्टेड कि हम पूरा डेटा इंक्लूड करें, हम उसको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में आइगन वैल्यूज ले सकते हैं। इज इट फाइन? इतना समझ में आया कि हम डायगोनल एलिमेंट क्यों ले रहे हैं? तो बता दीजिए। ओके फाइन। सो देखो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। मेरे पास मैं कोई खाली जगह देखता हूँ वापस, मैं खाली स्लेट या सो देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स था, लेट्स से दिस इज माय मैट्रिक्स। सो मेरे पास मैं दो ही वैल्यू लेता हूँ, दिस इज P1, this is P2, this is P3, this is P4। मेरे पास कुछ एक मैट्रिक्स है। अगेन मैं इसको यहाँ पे ट्रांसपोज ले रहा हूँ, दिस इज P1, दिस इज P4, फाइन, दिस कंटेंस योर P3, दिस इज P4, है ना। अब मेरे पास मान लो कि यहाँ कुछ आइटम्स है, उसको छोड़ दें, हम सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, फाइन। सो हम जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 इंटू P1 कितना देगा मेरे को? P1 इंटू P1 मेरे को देगा P1 देगा, बाकी जब सॉरी P1 इंटू P1 देगा, फिर दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, यहाँ पर है। सो इसको और इसको करते हैं, देन P2 इंटू P4, सो P1 स्क्वायर हमारे पास क्या मिलेगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 P4, ये वैल्यू हमको क्या देगा, जीरो देगा, फाइन। तो इसको मैं वापस लिख देता हूँ, दिस इज P1 स्क्वायर, और P1 स्क्वायर मेरा क्या था, 1 था, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास 1 ही आएगा, ठीक है। देन कम्स, मैं यहाँ वाली वैल्यू उठाता हूँ, तो दिस इज P1 इंटू P3, दिस इज अगेन यहाँ पर आएगा P1 इंटू P3 प्लस क्या आएगा, दिस इज P2 इंटू P4, P2 इंटू P4 मेरे पास क्या देगा, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो मेरे पास यहाँ जीरो आएगा। सिमिलरली मेरे पास अगर यहाँ कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ फिर मेरे पास जीरो आएगा और यहाँ 1 आएगा, है ना। तो अब यहाँ पर मैं कुछ भी आइटम रखूँ, जैसे मेरे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स है, लेट से मैं यहाँ पर
4 रखता हूँ या मैं 5 रखता हूँ, या मैं कुछ भी रख लूँ, 96 भी रख लूँ और 35 भी रख लूँ, तो ये क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है। और जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला आइटम और इस वाला आइटम को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इसका मल्टीप्लाई 0 से ही होना है, और जब मल्टीप्लाई 0 से होना है तो इसको हम हटा दें, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रख लें, हम यहाँ पर रख रहे हैं λ1 एंड दिस इज λ2। फाइन। यस सर। ठीक है। लीनियर अलजेब्रा पढ़ना था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं। देन the geometrically, okay fine, so when we are saying that when we are going for this geometrically, we are saying that geometrically speaking our principal component represents the direction of your data that explains the maximal amount of variance. Fine. So it contains the maximal amount of variance, that is to say that these lines capture the most important information. जैसे मैंने आपको बताया भी था कि वो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हमको क्या निकाल के दे रहे थे, हमने 1 2 और 1 2 जो आइगन वेक्टर्स अगर हमने निकाल के भी दिए तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 0 है. सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन देयर योर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर वेरिएंस एंड द इन्फॉर्मेशन. सो द larger the variance carried by your particular line, the larger the dispersion of your data points, and the larger the dispersion along your line, so more information it has. Otherwise we can that smaller the variance carried by a particular line, then you are having the smaller the dispersion of your data. So the smaller the dispersion of your data, the less information you are having. So what we can do is that in your principal component analysis, you are getting some new axes, and this new axes provide the best angle to see, to evaluate particular data, and so that we are having difference in between what is the your observation and what is the better visible. Like so, like consider this example. So consider this example, मेरे पास बहुत सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है. मैं अभी 2 डायमेंशन पे बात कर रहा हूँ. 2 डायमेंशन पे मेरा एक मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लेके चल सकता था, है ना. हम ये एक एक चेंज करते हुए देखते हैं कि इन सारे डेटा पॉइंट पे हमारे पास कंपोनेंट्स, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होते जा रहे हैं. तो एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, क्योंकि 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन हम क्रिएट कर रहे हैं. अब आप इस 2 डायमेंशन में आप ये देखो कि इस 2 डायमेंशन में आपके पास ये लाइन चेंज होती जा रही है. तो ये लाइन जैसे ही चेंज होती जा रही है तो आप ये देखो कि इसमें ये किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपकी ये वाली लाइन मैक्सिमम वेरिएंस इंक्लूड कर रही है. हम सबसे पहले λ1 की बात करेंगे, फिर दूसरे एक्सिस की बात करेंगे. तो पहली लाइन मान लीजिए कि हमारी ये वाली लाइन है. तो ये वाली लाइन किस पोजीशन पर मैक्सिमम वेरिएंस इंक्लूड कर रही है. देखो यहाँ पर वेरिएंस कम है, कम है, कम है, कम है. यहाँ पे जैसे ही पर्पल लाइन के साथ कोइंसाइड करती है ना, पर्पल के साथ जाती है तो मैक्सिमम वेरिएंस इंक्लूड कर रही है, और दिस इज योर पीसीए. तो जैसे ही हमारे पास पर्पल लाइन के साथ हमारा लाइन इंक्लूड हो गई तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा एक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस तो यही हो गया. फाइन. जैसे ही हमारा यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है ये फर्स्ट कंपोनेंट, तो दूसरा कंपोनेंट उसका 90 डिग्री. दूसरे कंपोनेंट पे हमारे पास वेरिएंस कितना मिल रहा था, इतना मिल रहा था. दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर नया ये पर्पल ही है ना, तो मैं भी पर्पल रंग ही उठा लेता हूँ. इसी को पर्पल बोलते हैं ना जो मैंने लिखा. हाँ. सो हम यहाँ पर दूसरा एंगल हमारे पास ये बन जाता, तो ये हमारी नई एक्सिस बन जाती. हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हमारा जो है एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, है ना. जैसे हमारा घर होता है तो घर को हम मान लो थोड़ा सा चेंज कर लें या एक्सिस चेंज कर लें, तो हम यहाँ पे भी एक्सिस चेंज कर रहे हैं. तो दिस इज माई पर्टिकुलर एक्सिस, और इस पर्टिकुलर एक्सिस पर हम नया एक्सिस बोल लेंगे. ये वाला डायमेंशन हम हटा देंगे, ये 2 डायमेंशन हटा दिया. अब जैसे ये 2 डायमेंशन हटा दिया तो हमारे पास क्या मिला. अब इस पर्टिकुलर एक्सिस में आप देखो कि इसमें वेरिएंस, इसमें सिर्फ वेरिएंस इतना ही है, और इसमें आपका पर्टिकुलर वेरिएंस, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक है. तो हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और यहाँ पे वेरिएंस आपका कम आ रहा है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं. फाइन. हमको कितने वेरिएंस लेना है, कितना वेरिएंस नहीं लेना है, हम उसको नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ते हैं. तो इतना समझ में आया ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो. सो ओके, देन वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट थिंग. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए. देन वी आर गोइंग नेक्स्ट स्टेप इज टू वी हैव टू सॉर्ट आउट द आइगन वेक्टर्स. सो हम क्यों सॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो डायग्राम था, पहला कंपोनेंट आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देगा, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा. सो हमारे पास हम क्या करेंगे, डोमिनेंट आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, और वो पर्टिकुलर डोमिनेंट आइगन वेक्टर ही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बनेगा. फिर उसके बाद दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा. सो वी आर सॉर्टिंग आवर आइगन वेक्टर्स. सो इट इज
the your eigen vectors and eigen values who are behind the magic, तो ये बताने की जरूरत नहीं है. So take your eigen values like lambda 1, lambda 2, lambda 3 and then sort from the largest to the smallest. So doing so we are sorting the eigen vectors accordingly. हमारे पास eigen values आ रही हैं, तो eigen values के साथ हम eigen vectors को भी sort करेंगे. फाइन, क्योंकि हर एक आइगन वेक्टर उस पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज के पास होगा. फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से lambda 3 is the largest eigen vector, then take the third column of your particular matrix P and place it on the first column and then call this let's say this sorted matrix is like your P star. हमने उसको P star बोल दिया. So the column of P star are the same as the column of the P, but हमारे पास सिर्फ हमने उसमें से परम्यूटेशन कर दिया है, हमने और कुछ नहीं करा है. परम्यूटेशन लगाया कि हमने कॉलम 1 को कॉलम 2 से रिप्लेस कर दिया. तो ये तो पॉसिबल है. मैं जैसे आप लोगों से नाम पूछूं कि आप रोल नंबर, नाम, फिर आपकी एज बताएं, या पहले आपकी एज बता दें, नाम बता दें और आपका रोल नंबर बता दें. तो दिस इज जस्ट एन ऑर्डर. तो उसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर होगा सबसे पहले उसको चीज़ें आपको बता देंगे. तो आप पहले मैंने आपका पूछा कि आपने नाम बताया, फिर आपकी एज बताई, फिर अपना रोल नंबर बताया. तो हो सकता था कि रोल नंबर में आपके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सेव है, तो हम रोल नंबर को सबसे पहले ले आते हैं. और यूजुअली हम करते भी यही हैं. आप लोग, आपकी जब लिस्ट बनती है तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको वहीं रखते हैं. तो बाय डिफॉल्ट आपका रोल नंबर फर्स्ट होता है. तो यहाँ पर वो आइगन वेक्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रहा है, हम उसको सबसे पहले लाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस आर वी आर सॉर्टिंग. अगर उसके साथ सॉर्ट कर रहे हैं तो हम पूरा स्ट्रक्चर भी सॉर्ट करेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज के साथ एक पर्टिकुलर आइगन वेक्टर भी होगा. तो आइगन वेक्टर हमारा आइगन वैल्यू थर्ड है, तो हमारा उस वेक्टर में जो थर्ड कॉलम है उसको उठा के हम फर्स्ट पे ले आएंगे और फर्स्ट को थर्ड पे ले लेंगे. फाइन. Then we are calculating, and this is my PCA. So we are calculating again Z star. So हम नया Z कैलकुलेट कर रहे हैं, नया डेटा बना रहे हैं. नया डेटा इज लाइक हमने जो निकाला था, दिस इज माय X ट्रांसपोज. सो माय दिस X hat. So this X hat is your older data, or this is my older data. This is transformed scaled older data into your new eigenvectors. So this is my new eigenvector, and this is how you can go for this new matrix Z is centered standardized version of your X, and now this is a combination of your eigenvectors and eigenvalues. So this is how we can go for principal component analysis. Fine. Now अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था कि हम 4 लें, 5 लें, 6 लें, 7 लें. तो हमारे पास अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके पास सिलेबस में ये थर्ड इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू ड्रॉप सम अनइम्पॉर्टेंट फीचर्स फ्रॉम आवर न्यू सेट. तो हमारे पास ये नया डेटा आ गया. तो अब हमारे पास नया डेटा आ गया. अब नया डेटा जैसे मैंने स्टार्ट करा था, लेट्स से this is again let's say this is a roll number, this is name and this is age. तो ये मेरा X था. अब हमारे पास जो नया X हेट आया, या मेरा Z स्टार आया, मेरे नोटेशन में ये Z स्टार जो भी था हमारा, दिस इज इक्वल्स टू हमारे पास कुछ नया कॉलम आया. तो नया कॉलम ये हमारा रोल नंबर नहीं होगा, ये कॉलम 1 होगा, ये कॉलम 2 होगा और ये कॉलम 3 होगा. ये 3 न्यू फीचर्स होंगे. तो ये ऑब्वियसली ये रोल नंबर या ये नेम या एज नहीं होगा. ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, लेट्स से अल्फा 1 प्लस रोल नंबर प्लस अल्फा 2 देन योर नेम देन एज, उसका कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होगा. उसी के साथ इन तीनों का कोई अनदर कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं होगा. उसी के साथ इन तीनों का कुछ अनदर कॉम्बिनेशन आपके पास कुछ नया मैट्रिक्स यहाँ होगा जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देगा. फाइन. इतना समझ में आया? मेरे पास ये नए जो 3 कॉलम बन रहे हैं, ये R N A नहीं बन रहे हैं, ये इन तीनों के कुछ नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. इज इट फाइन? इसलिए यहाँ अल्फा 1 नहीं ले सकते, यहाँ बोल सकते अल्फा 1 या अल्फा 1 2 अल्फा 1 3, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमने इसको मैट्रिक्स लिया था. इज इट फाइन? यस सर. ओके. सो वी आर नाउ, अब हमारे पास ये 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आ गए. हमने इसको स्टैंडर्डाइज करा था. क्यों स्टैंडर्डाइज करा था? क्योंकि हमको इनका वेरिएंस कैलकुलेट करना था. हो सकता था इसका वेरिएंस सबसे कम हो, ये वेरिएंस हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो इस पर्टिकुलर को हटा दें. तो 3 डायमेंशन से हम कहाँ पे आ गए? 2 डायमेंशन पे आ गए. एंड दिस इज वी आर गोइंग फॉर डायमेंशन रिडक्शन. सो लेट्स से
हाउ वी आर गोइंग फॉर दिस डायमेंशन रिडक्शन। हमने अभी तक नई एक्सेस निकाली थी, अब इसमें से हम नई एक्सेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो वी आर ड्रॉपिंग द अनइम्पॉर्टेंट फीचर फ्रॉम आवर न्यू सेट। सो मैं यहाँ लिखना भूल गया ना, PCA, it looks bad, fine. So dropping our unimportant feature from our new set. So we are having three common method to do this, fine. So first method is like we are looking for arbitrarily select how many dimensions you want to keep. तो arbitrary यार मेरे को 4 चाहिए, मेरे को 5 चाहिए, मेरे पास कोई बेसिक या कोई फैक्ट फिगर नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ तो यार मेरे को 4 चाहिए या 5 चाहिए, मैं कितनी भी ले सकता हूँ, फाइन. सो दिस इज बेस्ड ऑन योर मेरे को यार 4 ही अच्छा लगता है, मेरा 4 लकी नंबर है, सो वी कैन आर्बिट्रेरी सिलेक्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ डायमेंशंस या आप then or we can say that we can calculate the proportion of variance for each feature, then pick the threshold and then until your features आप उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचते, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर आ गया और मैंने यहाँ पे मेरा थ्रेशोल्ड सेट कर दिया, मैंने यहाँ थ्रेशोल्ड सेट कर दिया कि मेरा जो वेरिएंस था, मैंने ये वेरिएंस लिया था, मैंने वेरिएंस ले लिया था कि लेट्स से मेरे पास 8 से कम वेरिएंस वाले को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरा 8 या 8 से कम वाला वेरिएंस था, तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा, बाकी इसके बाद वाले सारे कम हैं। तो ये दूसरा तरीका हमारे पास ये हो गया कि हम वेरिएंस के लिए एक थ्रेशोल्ड सेट कर लें, तो दिस इज अगेन गुड थिंग. देन the next one is that calculate the proportion of variance for each feature, then sort all those features by your proportion of variance, then plot the cumulative proportion of your variance explained versus your feature. तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम क्यूमुलेटिव वेरिएंस निकालें, तो पहले का क्यूमुलेटिव वेरिएंस कितना था, हम इसी फिगर पे आते हैं. इस फिगर को मैं एक बार क्लियर करता हूँ और फिर मैं आता हूँ. ओके, सो हम इस फिगर पे थे यार, अगेन खुल जा सेम या. सो वी आर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम इसको ही बना के चलते हैं. अरे यार, दिस इज क्यूमुलेटिव है. क्यूमुलेटिव में पहला मान लीजिए ये मेरे पास 40 आया, तो मेरे पॉइंट 1 के लिए मेरे पास 40 आया, दिस इज फाइन, दिस इज 40. देन सेकंड कम्स मेरे पास क्यूमुलेटिव ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दूसरा मेरे पास, चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं 40 यहाँ से लेता हूँ, दिस इज माई 40, दिस इज माई 40, फाइन. देन दूसरा मेरे पास आया नियर अबाउट 18, तो मैं अगला पॉइंट कहाँ लगाऊंगा बताते जाए, यहाँ लगा लो, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव निकाल रहा हूँ, अगला पॉइंट यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, उसी में ऐड होगा ना, ऊपर ऐड होगा, फाइन. सो दिस इज माय क्यूमुलेटिव, फाइन. फिर तीसरा मेरे पास कुछ इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा, और उसके बाद मेरे पास लाइन नियर अबाउट कांस्टेंट आ जाएगी. इज इट फाइन? तो मेरी जब लाइन कांस्टेंट आने लग जाए, तब मैं, इसका मतलब ये है कि मेरा वेरिएंस ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो यहाँ तक के मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट ले लेता हूँ और बाकी को छोड़ देता हूँ. तो दिस इज माई थर्ड पॉइंट. मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट यही बोल रहा है. सो दिस इज माई थर्ड पॉइंट, फाइन. नाउ अगेन अब हम इसके थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आ जाएं कि हम किसको इंक्लूड करेंगे. ये तो आर्बिट्रेरी था, ये मतलब हम बोल सकते हैं वो स्टैटिशियंस जो बोलते थे, हम उस स्टैटिशियंस पे बात कर लें. हम अब वापस अपनी मशीन लर्निंग पर आ जाएं. सो again we are saying that we are having some orthonormal vectors like p is equals to p1 to pn, and this p1 to pn are your orthogonal linearly independent vectors, and we know that our xi ओरिजिनल डेटा, तो हमने ओरिजिनल डेटा को क्या बोला था, दिस इज एन समेशन ऑफ अल्फा आई जे आई इनटू पी जे. हमने यहाँ से बेसिक असम्पशन हमारा एज ए बेसिस बनाने की कोशिश करी थी, फाइन. नाउ बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली टॉप के डायमेंशंस. तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने 4 डायमेंशन लिए थे. हमारे पास n कितना था, मेरे पास n 10 था, मैंने टॉप के डायमेंशंस लिए थे, मतलब मैंने 4 डायमेंशंस लिए थे. तो लेट्स से वी आर हैविंग k इज इक्वल्स टू 4. So we are interested in top k dimensions, so we are interested in only 4 dimensions. हमारे पास अभी k नहीं पता है, so we are interested only in the top k dimensions, and we have to identify the appropriate value of this k. Fine. So this is my new estimated, हमारा जो नया estimated था, this is my x hat, या मेरा जो उसमें हमने z star बोला था, तो this is my x hat. तो this is my x hat is just like equals to alpha I k
into pk, तो ये अल्फा ik to pk, so this is like यहाँ ik है, so this is like यहाँ i k नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे भी j ही होना चाहिए था, आप यहाँ लिख लीजिएगा दिस इज अगेन j एंड दिस इज अगेन j, so this traverse right from 1 to n because we are having n dimension, and this works on right from j equals to 1 to j equals to k, तो यहाँ पर मेरा k आएगा, यहाँ k नहीं आएगा, so this is how we are calculating the top k dimensions, है ना। so अब हमको क्या करना है, हमको पर्टिकुलर वो वेक्टर्स निकालने हैं, हमको टॉप के डायमेंशंस निकालने हैं। इसका मतलब ये हमको कि हमारे पास n नंबर के हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट n नंबर के हमारे पास आइगन वेक्टर्स थे, उन आइगन वेक्टर में से हमको k नंबर के आइगन वेक्टर्स निकालना है और k इज लेस देन योर n, सो वी हैव टू सिलेक्ट each pi such that minimize your reconstructed error। तो मेरा reconstructed error क्या था, वही हमारा least square estimate, मेरा ये ओरिजिनल डेटा, मेरा ये एस्टिमेटेड डेटा, तो दिस इज माय ओरिजिनल डेटा, दिस इज माय एस्टिमेटेड डेटा, तो ये वाले जो हमारी एरर थी इसको हमको क्या करना चाहिए था, हमको इस चीज को मिनिमाइज करना था। फाइन, इस एरर को जितना मिनिमाइज हो जाए एक्सेप्टेबल पे, उस एरर को हमको मिनिमाइज करना था। सो मैं इसको अगेन, हमारी फिर वो स्क्वायर एस्टिमेट्स और सारी चीज़ें आ गई, तो मैं इसको अगेन खोलता हूँ, तो दिस इज एक्स आई माइनस एक्स हेड इंटू एक्स आई माइनस एक्स हेड, पर क्योंकि ये मैट्रिक्स था तो पहला वाला ट्रांसपोज हो गया, दूसरा वाला प्लेन हमारा रहा। अब हम इसको वापस खोलते हैं, तो दिस बिकम्स योर एक्स आई स्क्वायर इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स आई हेड स्क्वायर इंटू माइनस 2 इंटू एक्स आई हेड, है ना। तो हम अभी उसको उतना नहीं खोलते, हम सिर्फ पहले ही पहला एक एक्स आई था ना, तो ये मैट्रिक्स था, तो हम इसमें सिर्फ जे डायमेंशन को खोलते हैं, तो सिर्फ जे डायमेंशन को खोलते हैं, तो ये दिस इज अगेन माय स्क्वायर, सो दिस इज माय स्क्वायर। अब इसमें से मेरे पास क्या होगा, मेरे पास वैल्यूज हमको दिस इज एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम खोलने की कोशिश करें, इसको अगर आप छोड़ भी दें, इसको हम खोलने की कोशिश करें, तो व्हाट इज योर एक्स आई, माई एक्स आई, मेरा एक्स आई क्या था, मेरा एक्स आई था अल्फा आई जे पी जे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा आई जे पी जे, पी जे में यहाँ शायद लिखना भूल गया हूँ, तो आप लिख लीजिएगा दिस इज अल्फा आई जे पी जे माइनस यहाँ एक्स हेट आई क्या था, अल्फा आई के पी के, तो मेरे पास अगेन यहाँ पे भी जे गलत था, तो दिस इज अल्फा आई जे पी जे, पर ये वाला जो मेरे मैट्रिक्स था, ये मेरा जो जे था, ये मेरा जे कहाँ से कहाँ तक घूम रहा था, 1 से लेकर n तक, मतलब हमारे सारे डायमेंशंस पे घूम रहा था। और ये वाला जो जे था, दिस इज जे इज इक्वल्स टू राइट फ्रॉम 1 to k, मतलब मेरे छोटे नंबर के डायमेंशंस निकालने की कोशिश कर रहा था। इज इट फाइन? नो रिस्पॉन्स, हेलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, समझ में आया नहीं आया? हेलो हेलो हेलो, यस सर। ओके, आगे बढ़ो। सर वो के की लिमिट का वो आपने किया ना, वो पी आई जे वहाँ पे, वो हाँ, समझ वो समझ में इसलिए नहीं आया, देखो हमारे पास शुरुआत में जो डेटा था, हम डायमेंशन रिडक्शन पे जा रहे हैं, तो मेरे पास n नंबर ऑफ कॉलम्स थे, मेरे को डायमेंशन रिड्यूस करना है, तो मेरे को कुछ कम करना है, तो लेट्स से मैंने डायमेंशन ले लिए टॉप के डायमेंशंस ले लिए, k इज लेस देन योर j, तो मेरे पास, जैसे इसको हम इस फिगर से समझें, लेट्स से मेरे पास ये मेरा x डेटा था, ये x डेटा कैसा था, योर अल्फा आई इंटू योर कोई ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, अगेन अल्फा 2 इंटू पी टू प्लस अल्फा के इंटू पी के प्लस अल्फा एन इंटू पी एन, हमने यही निकाला था। इसमें से हमने क्या निकाला था कि हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट एक्सिसेस हैं, वो इम्पॉर्टेंट एक्सिसेस कुछ कम है, बाकी हमारे ओरिजिनल डेटा था, तो हमारा ओरिजिनल डेटा कहाँ से आया, अल्फा आई पी आई से अल्फा एन पी एन तक। हमको अच्छे डायमेंशंस लेने थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रहा था, तो हम उसमें से कुछ सिलेक्टेड ले लें, तो हमारे सिलेक्टेड क्या होंगे, लेट्स से हम अल्फा आई पी आई से लेकर अल्फा के पी के तक ले रहे हैं। ओके सर, तो के हमेशा जे से कम होगा ना? जे तो हमारा इंडेक्स से, के हमारा एन से कम होगा। ओके सर। एन हमारा डायमेंशन था, ओरिजिनल डायमेंशन था, के हमारा लोअर डायमेंशन स्पेस था, जैसे हमने 10 से लिया था, 4 पे लिया था, तो एन हमारा 10 था और के हमारा 4 था, तो हमको अभी के की वैल्यू नहीं पता, सो लेट्स से दिस इज माय के प्लस 1, तो अब हम इसमें से माइनस करने की कोशिश करें,
है ना। हम इतने वैल्यूज में से ये मेरा ओरिजिनल x था, तो इतने वैल्यूज में से मैं इतनी वैल्यूज हटा रहा हूं, तो मेरे पास क्या बचेगी, अल्फा k प्लस 1 से लेकर अल्फा n तक के आइटम्स बचेंगे। इज इट फाइन? अगर मैं इस x में से इस लाइन में से ये वाली लाइन हटाता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यही बचेगा ना, यस सर। है ना, Yes, मेरा sir. यही बचेगा। तो इसका इस पर्टिकुलर का इंडेक्स कहां से आएगा, इस पर्टिकुलर का इंडेक्स आएगा k प्लस 1 से लेकर अल्फा n तक। इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये माइनस ये Yes, कर रहा हूँ, sir. यहाँ मैंने पीजे लिखना छोड़ दिया था, भूल गया था मैं। तो मैं अगर इसमें से ये माइनस करूंगा तो बाकी बचा आइटम होगा मेरा, टॉप के आइटम्स तो मैंने हटा लिए हैं, तो अब मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये वाले आइटम्स बचेंगे। और मैं क्या चाहता था कि ये वाला आइटम मेरे पास वैल्यू मिनिमाइज करते, तो मेरी ये वाली वैल्यू मेरे को मिनिमाइज करनी थी, जैसे हमने लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट में करा था, तो हमने उस वैल्यू को मिनिमाइज कर लिया। तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास वही अल्फा आई जे पी जे बचा, अल्फा आई जे पी जे बचा। तो आई तो हमारा कांस्टेंट था, हमारा जे क्या था, हमारा सॉरी आई तो खैर आई को हम छोड़ दें, हम आई को हम रोज पे ले रहे हैं, हम कॉलम्स को ले रहे हैं। तो अल्फा आई जे पी जे मतलब दिस इज अल्फा के प्लस 1 पी के प्लस 1 देन अल्फा के प्लस 2 पी के प्लस 2 अप टू अल्फा एन पी एन। तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन बची, तो हमारे पास ये वाला आइटम बचा, लाइक राइट फ्रॉम j इक्वल्स टू k प्लस 1 से n तक, और सारा आइटम सारे रोज तो हम उसमें से कैलकुलेट कर ही रहे हैं। तो हम इसको अगेन दिस इज माय स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर वैल्यू पे थे, स्क्वायर वैल्यूज हमने यहाँ से डिलीट कर दी। अब इस स्क्वायर को वापस हम मैट्रिक्स फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि ये सब हमारा मैट्रिक्स ही थे, तो हमने इसको वापस सॉरी वेक्टर्स ही थे, तो वेक्टर्स में हम लिया है। तो दिस इज अगेन इक्वल्स टू दिस इज अल्फा आई जे पी जे इंटू अल्फा आई जे पी जे। सो एक को ट्रांसपोज में ले लिया, एक को ट्रांसपोज में नहीं लिया। फाइन, इतना समझ में आया? अब हम इसको अगेन ये वाला, ये जो अंदर वाला था, जो पर्टिकुलर कॉलम था, इस कॉलम को हम एक्सपांड कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज अल्फा आई के प्लस 1 इंटू पी के प्लस 1 इंटू अल्फा आई के प्लस 2 इंटू पी के प्लस 2 अप टू अल्फा आई एन इंटू पी आई एन इंटू यू आर लाइक अल्फा आई, वापस वही वाली वैल्यू, तो मेरे पास वही वाली वैल्यू आ गई। अब देखो, अब इसमें मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है। अब इसमें अगर मैं इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास दो तरह के आइटम्स आएंगे। क्या आएंगे, हमारे पास दो इस तरह के आइटम आएंगे। एक, जब आपके पास इस पीके की वैल्यू इस पीके की वैल्यूज पर आएंगी, और वो बाकी वो सारे आइटम जिसमें ये पीके और इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स एक जैसा नहीं होगा। नहीं नहीं समझ आया, समझ में नहीं आया, एक बार मैं समझाता हूँ वापस। आ गया, चलो छोड़ो, ठीक है फिर। तो अब जब हम इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी के प्लस 1 और पी के प्लस 1 ये दोनों एक हो जाएंगे, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर यहाँ पी के प्लस 2 पी के प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, क्योंकि हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल थे। तो मैं क्या बोलता हूँ कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स को क्या बोलते हैं कि जब दोनों के इंडेक्स एक जैसे थे तो हमने इन टर्म्स को फिर सेपरेट आउट कर लिया। लेट्स से अल्फा आई जे इंटू पी जे ट्रांसपोज इंटू पी जे ट्रांसपोज, अगेन अल्फा आई जे पी जे ट्रांसपोज इंटू पी एल, वाइल योर जे इज नॉट इक्वल्स टू एल। बाकी जब j इक्वल्स टू जे था तो वो हमने अलग निकाल लिया, बाकी j इक्वल्स टू एल नहीं था तो हमने उसे यहाँ रख लिया। अब ये दोनों क्या थे, ये दोनों इन सभी का एंगल कितना था, 90 डिग्री था, तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास कितनी बची, हमारे पास वही पर्टिकुलर वैल्यू बची जो जिनकी पर्टिकुलर कॉलम एक जैसे थे। इसका मतलब ये था कि हम वापस वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जा रहे हैं। तो अब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो दिस इज यू आर गेटिंग अगेन योर वन वैल्यू, सो दिस इज माय वैल्यू 1। तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा आई जे इंटू अल्फा आई जे, तो दिस इज माय अल्फा आई जे स्क्वायर। सो मेरे पास ये अल्फा आई जे स्क्वायर आ गया, ये वाली वैल्यू तो 0 थी। अब अल्फा आई जे मेरे पास क्या था, अल्फा आई जे हमने निकाला था एक्स आई ट्रांसपोज पी जे, दिस इज माय एक्स आई ट्रांसपोज पी जे का होल स्क्वायर। हमारा जो ओरिजिनल डेटा था हमने कैलकुलेट करा था ना अल्फा आई जे की वैल्यू। सो अगेन इसको मैं वापस खोल लेता हूँ, तो दिस इज पी आई ट्रांसपोज इंटू एक्स आई ट्रांसपोज पी जे, वैल्यू हमारे पास आ रही, सॉरी दिस इज पी जे। सो इसको हम वापस खोल लेते हैं, तो दिस इज योर पी जे ट्रांसपोज इंटू एक्स आई ट्रांसपोज इंटू पी जे। ये क्या बन रहा है, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ही बन रहा है। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या कर रहा है, इस मैट्रिक्स को हमको मिनिमाइज करना था। तो ये वाली वैल्यू हम मिनिमाइज कर लेते हैं, जहाँ ये हमारी वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे,
हम उतने आइटम्स को हटा देंगे. सो दिस इज अ पर्टिकुलर बेसिस फॉर आवर वैल्यू. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट दिस इज माय अगेन सिग्मा स्क्वायर. सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज दैट वी ट्राई टू मिनिमाइज दिस P ट्रांसपोज सिग्मा इनटू P ट्रांसपोज सच दैट अब इसके पास एक कंडीशन लग रही है सच दैट P ट्रांसपोज इनटू P इज इक्वल्स टू 1 कि इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ जो आएगा वो 1 होगा. तो इसकी वैल्यू हमारे पास सबसे मिनिमम होना चाहिए. तो हमारे पास सबसे मिनिमम कब वैल्यू होगी? तो इसके आगे की जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है ऑप्टिमाइजेशन में. तो दिस इज माय कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड दिस इज माय convex function. This is my convex function on based on this particular constraint. So this is supposed to be the constraint optimization. So हम इस constraint optimization पे देंगे तो हम इस pk की वैल्यू हमारे पास कहाँ आएगी? ये k की या k+1 से n तक की वैल्यू हमारे पास कहाँ आएगी? ये हमारे पास n-k टाइम्स चलेगा और n-k टाइम्स पर हमारे पास कब चलेगा? जब इनका पर्टिकुलर वेरिएंस कम होगा. तो यहाँ पर हम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम लगा देंगे और इस पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इन पर्टिकुलर वैल्यू की कम होगी. अगर हमको उसको सिंपली समझना है, ये हमारा मैथमेटिकल प्रूफ था. अगर आपको लॉजिकली समझना है तो लॉजिकली समझने में मैंने जो डिफाइन करा था इस पर्टिकुलर केस में कि जहाँ पर हमारा वेरिएंस कांस्टेंट आने लग जाता है, जहाँ हमारा कांस्टेंट वेरिएंस आने लग जाता है उस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का, तो हम मान लेते हैं कि हमारी वैल्यूज सफिशिएंटली हो गई. फाइन. Any problem till Yes, now? sir. No, sir. Okay, fine. So एक एग्जांपल लेके चलते हैं. Let's say we are having some. हाँ, क्वेश्चन था किसी का? नहीं. Okay, fine. So let's say we are having some two orthonormal bases. हमने orthonormal basis निकाल रखी है. This is 1 upon under root 2 and again 1 upon under root 2 और दूसरी थी -1 upon under root 2 and 1 upon under root 2. तो ये दोनों एक दूसरे से ऑर्थोनॉर्मल है. ऑर्थोनॉर्मल कैसे कि इसमें भी हमारे पास एक आइटम था, इसमें भी हमारे पास अगर हम बात कर लें दिस इज 1 एंड दिस इज 1, तो इसको हमने इसको नॉर्मल करने की कोशिश करी, नॉर्मलाइज करा. तो दिस 1 अपॉन इस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, तो आपके पास क्या मिल गया? अंडर रूट 2. सिमिलरली अंडर रूट 2, तो हमारे पास ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हो गए. ये एक पॉइंट कर रहा है 1 1 पर, एक कर रहा है -1 1 पर. तो ये दोनों हमारे पास कितने हो गए? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 0 ही आएगा. फाइन. सो दिस इज माय 90 डिग्री का एंगल है. सो दिस इज लाइक 1 upon under root 2, this is 1 upon under root 2 and 1 upon under root 2. Again this is -1 upon under root 2 and this is 1 upon under root 2. तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. फाइन. सो ये हमारे पास दो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स आ गए. लेट्स से वी हैव सम पॉइंट्स. सो वी आर हैविंग सम पॉइंट्स लाइक 3.3 and 3. तो हमारे पास कोई एक पॉइंट होगा 3.3 and 3. सो इस 3.3 इंटू एंड 3, तो हमारे पास कोई पॉइंट होगा. लेट्स से दिस इज 3.3 एंड यहाँ पे 3, तो हमारा एक कोई पॉइंट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा. नाउ इसके लिए हम अब बेसिस निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो अभी हम अल्फा 1 निकाल रहे हैं. तो अल्फा 1 इज इक्वल्स टू योर एक्स ट्रांसपोज यूआई. तो हमारे पास एक्स ट्रांसपोज, तो हमारे पास एक्स क्या था? दिस इज माई 3.3 एंड 3. सो 3.3 इंटू 3 में मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा? मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा. इस पूरे वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करने की, इस पूरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की जरूरत हमारे पास नहीं पड़ेगी. सो दिस इज 6.3. तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई आएगा दिस इज 3.3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2. तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. दिस इज 6.3 इंटू अंडर रूट 2. अगेन अल्फा 2 के लिए हम निकालेंगे तो दिस इज 0.3 अपॉन अंडर रूट 2. तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई. दिस इज अगेन, इसको अगर आप वापस जोड़ के भी देख लें तो आप जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपके पास अगेन दो पॉइंट मिलेंगे. दिस इज 3.3 एंड 3. फाइन. सो अब हमको कैलकुलेट करना है कि हमारा k की वैल्यू कितनी है. तो अब k की वैल्यू आप सामने कैलकुलेट कर लें. देखो ये 6.3 आ रहा है या 0.3 आ रहा है ना. तो दिस इज माई एस्टिमेटेड x इज लाइक अल्फा 1. so this is my alpha 1 क्या था? 6.3 into under root 2. so this is 6.3 into under root 2 into your u1. so हमारा u1 क्या था? this is 1 upon root 2 and 1 upon root 2. तो 1 upon root 2 into 1 upon root 2. तो हमारे पास x हेड का x1 क्या आएगा? 3.15. सिमिलरली दूसरे के लिए मेरे पास क्या आएगा? दूसरे के लिए मेरे पास वैल्यूज काफ़ी कम आएगी क्योंकि यहाँ पे 6.3 की जगह यहाँ पे आएगा 0.3. तो मेरे पास जब 0.3 आएगा तो मेरे पास वैल्यू नियर अबाउट बहुत छोटी आ जाएगी. तो जब हम कंपेयर करेंगे इसका
इसका वेरिएंस और उसका वेरिएंस तो आपके पास वैल्यूज कम है, या इसको उससे कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बहुत कम आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 3.15 और वो दूसरी में वैल्यू 0 आएंगी, तो हम सिर्फ k = 1 को लेके चलेंगे, एंड दिस इज हाउ वी कैन सिलेक्ट आवर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। फाइन। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चंस पूछ लें। हमारा पीसी आज खत्म हो गया है।